Hello students, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Students, I hope you all are well at your home. Students, we have started chapter number 2 in our last classes and ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ exercise number 2.2 and we have completed 8 questions in our last class. Today we will start question number 9 and first of all put date. It's 29 of July 2020 and this is exercise number 2.2 and question number 9. First of all, look at the statement. The ages of Hari and Harun are in the ratio 5:7. Hari ਤੇ Harun ਦੀ age ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ age ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ 5:7 and I already told you ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਏਜ 5x years ਆਏਗੀ ਐਂਡ ਹੈਰੂਨ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 7x years. 4 years later 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ 5x + 4 ਐਂਡ ਹੈਰੂਨ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ 7x + 4 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦੇਅਰ ਏਜਿਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜਿਸ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 56. ਵਟ ਆਰ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜਿਸ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਵਾ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ. ਗਿਵਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ given ratio ਹੈਗੀ ਆ 5:7. let age of Rahul equal to 5x years, age of Harun 7x years. after 4 years 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਏਜ ਆਫ ਰਾਹੁਲ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲਸ ਏਜ ਲਿਖ ਲਓ. ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਆ ਜਾਣੀ 5x + 4 years ਅਤੇ ਹੈਰੂਨ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ 7x + 4 years. ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜਿਸ ਦਾ ਸਮ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਏਜ ਅਤੇ ਹੈਰੂਨ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 56. ਠੀਕ ਆ. ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਆ. ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ. ਜੋ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 5 × x ਵਾ ਨਾ 5 ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਏਜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 7 ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰੂਨ ਦੀ ਏਜ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ. ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 10th. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬॉयज़ ਅਤੇ ਗਰਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ 7:5 ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयज़ ਆ ਇਜ਼ 8 more than the number of girls. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬॉयज़ ਵਾ ਉਹ ਗਰਲਸ ਨਾਲੋਂ 8 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ. ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਲਾਸ ਸਟਰੈਂਥ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਲਾਸ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗੀ. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਸਟ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰਲੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ 7:5. ਇਟ ਮੀਨਸ ਬॉयज़ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ 7x ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ. ਮੈਂ ਜਸਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਬॉयज़ 7x ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 5x. ਦੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयज़ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयज़ ਆ ਉਹ ਗਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 8 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜਣੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬॉयज़ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੇ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਆ. ਬॉयज़ 8 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਬਟ ਉਹ ਗਰਲਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗਰਲਸ 8 ਜਣੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬॉयज़ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੇ. ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयज़ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰਲਸ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਆ. ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ. ਨੈਕਸਟ 11th ਕੁਐਸਚਨ. Bachung's father is 26 years younger than Bachung's grandfather. Bachung's ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨਾਲੋਂ 26 years ਛੋਟੇ ਆ
एंड 29 ईयर्स ओल्डर दैन बैचुंग ते ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ फादर 29 ईयर्स ਵੱਡੇ ਆ। अगर ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ एज ਦਾ सम कर लिए द सम ऑफ द एजिस ऑफ ऑल द 3 ਉਹ कितना 135 ईयर्स। दैन उन्होंने कहा वा कि वट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ दैम, सारिਆਂ ਦੀ एज कितनी होएगी। ठीक है बेटा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਬੈਚੁੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਵਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ, ਬੈਚੁੰਗਸ ਫਾਦਰਸ ਏਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ x ਈਅਰਸ। फिर ग्रैंडफादर की एज कितनी होएगी, ग्रैंडफादर से एज कितनी होएगी। हाँ जी, वो अपने ਉਹਦੇ ग्रैंडफादर नालों 26 ईयर्स यंगर सी। इट मीनस अगर ਉਹਦੇ फादर की एज 26 ऐड करांगी मैं तो वो ग्रैंडफादर की एज आएगी। ठीक है। तो बैचुंग की एज कितनी होएगी, उन्होंने कहा जिहड़ा बैचुंग 29 ईयर्स छोटा है अपने फादर नालों। इट मीनस अगर मैं वो फादर की एज चों 29 सबट्रैक्ट करांगी दैन वो बैचुंग की एज होएगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तिन्ना की एज नू प्लस करना, तिन्ना दी एज x प्लस 26 ते x माइनस 29, तिन्ना का सम कितना 135, तिन्ना का सम कितना 135। ठीक है। तो मैं की करना, इनू सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कट लैनी है। वो इत्थे फादर की एज भी निकल आनी, इत्थे फिल करांगे तो ग्रैंडफादर की निकल आनी, इत्थे फिल करांगे तो बैचुंग की निकल आनी। ठीक है। सो फिर ये नाल एक क्वेश्चन हो जाएगा तुहाडा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 12। इदा बेटा बैचुंग्स की एज तुहाडियां तिनों दियां फादर दी एंड ग्रैंडफादर दी ते ओहदी खुद दी तिनों दियां निकल आउणगियां। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 12 ये तुसीं अटैम्प्ट करना है। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि की जो प्रेजेंट एज आ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 15 साल बाद 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। जो ਉਹਦੀ प्रेजेंट एज आ 15 साल बाद ਉਹਦੀ एज कितनी हो जानी आ, जिन्नी ਉਹਦੀ प्रेजेंट एज आ ਉਹਦਾ 4 टाइम्स। वट इज़ हिज प्रेजेंट एज, ਉਹਦੀ प्रेजेंट एज की होएगी। लैट ਉਹਦੀ प्रेजेंट एज असी मान लेने आ, लैट रवीज प्रेजेंट एज कितनी x ईयर्स। 15 ईयर्स लेटर या आफ्टर 15 ईयर्स वो कितनी हो जानी है x प्लस 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा मैं स्टैप्स कंप्लीट नहीं लिख रही, मैं बार बार दस रही हाँ, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हाँ। वो प्रेजेंट एज x ईयर्स आ, 15 साल बाद एज x प्लस 15 हो जानी है। बट क्वेश्चन की कहता वा कि x प्लस 15 बनती कितनी आ, वो प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स। ठीक है। ये स्टेटमेंट हैगी आ 15 साल बाद जिन्नी वो होने एज वो तो 15 साल वध जानी है, तो बराबर काहदे इक्वल आती है वो होने वाली एज का 4 टाइम्स। ठीक है। इनू सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकल आनी, बस वही सानू चाहिए, वो प्रेजेंट एज ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 13। इरेशनल नंबर इज सच that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get minus 7/12. What is the number? I hope it is this question like first question. I think तुसी तुहानू ट्राई करना चाहिए वा क्वेश्चन। रैशनल नंबर जो भी आ अगर उन्होंने मैं 5/2 ना मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 2/3 ऐड करूँगी तो मेरा आंसर आ जाना minus 7/12। सानू क्वेश्चन और सानू नंबर चाहिए वा। मान लेनी मैं नंबर x वा, उन्होंने कहा अगर मैं नंबर दे विच 5/2 मल्टीप्लाई करा तो वो 2/3 प्लस करा तो मेरा आंसर आता minus 7/12। दसो की नंबर होएगा। इनू सॉल्व करके इत्थों x की वैल्यू निकल आनी। ठीक है स्टूडेंट्स। नैक्सट 14th क्वेश्चन।
लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी की है, एक कैशियर हैगी बैंक दे विच। शी हैज़ करंसी नोट्स ऑफ डिनोमीनेशनस ₹100, 50 एंड 10। लक्ष्मी बैंक दे विच कैशियर आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ, 50 ਦੇ ਤੇ 10 ਦੇ, ₹100 ਦੇ, ₹50 ਦੇ ਤੇ ₹10 ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੋਟਸ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ 2:3:5। मतलब 100 वाले 2x नोट्स आ, 50 वाले 3x नोट्स आ, 10 वाले 5x नोट्स आ। तो इन्हां सारे नोट्स नूं अगर मैं प्लस करदी हाँ तो वह बन जाता 4 लाख। ठीक है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमीनेशन डज शी हैव। उन्हें क्या उहदे कोल हरेक तरह के किन्ने किन्ने नोट आ। ठीक है। मैं 14th क्वेश्चन समझाउणा, 15 ये सिमिलर आ, तुसीं करना। सो बेटा केयरफुली इस चीज़ नूं समझो। वेखो थोड़ा जिहा डिफिकल्ट तुहाडे लैवल दे नाल तुहानूं लगूगा, मे बी ध्यान नाल समझो। लक्ष्मी कैशियर आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ₹100 ਦੇ नोट आ, ₹50 ਦੇ नोट आ एंड ₹10 ਦੇ नोट्स आ। तो सानू रेशो कितनी दिती इन्हां नोट्स की 2:3:5। हाँ जी, लैट कर लेनी आ। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹2, सॉरी पहला किहड़े 100 वाले रेशो रिस्पैक्टिवली आ। ठीक है। जिहड़ा नोट पहला दिता होया वा उहदी रेशो फस्ट आ। ₹100 के किन्ने है 2x, किन्ने नोट वा उहदे कोल 2x नोट। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 3x, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 5x। हुण मैनूं लभना चाहिए इहदा अमाउंट। अमाउंट किन्ना बनदा? 100 रुपये वाले 2x नोट आ, मान लो x1 आ जाता, 2 नोट 100 वाले आ। जे 2 नोट 100 वाले होणगे तो अमाउंट कितना बनना? 2 नोट 100 वाले 200, 4 नोट 100 वाले होणगे तो कितना अमाउंट बन जाना? 400। मल्टीप्लाई हो जाता ना। जे 2 नोट आ तो 2 × 100 200, जे 4 नोट आ 4 × 100 400। इस तरह अमाउंट फ्रॉम ₹100 ये कितना आ जाना? जिन्ने नोट वा उन्हें 100 नाल मल्टीप्लाई हो जाना। ठीक है। अमाउंट फ्रॉम ₹50 50 वाले जिन्ने नोट वा उन्हें 50 नाल मल्टीप्लाई हो जाना। मैं तुहानूं दस्सिया ना, जे 2 नोट आ 2 मतलब 200 रुपया मल्टीप्लाई होंदा ना, 4 नोट आ तो 400। इस तरह 50 वाले का 50 नूं 3 ना किया 150। अमाउंट फ्रॉम ₹10 नोट्स। ठीक है। इन्हां दे नोट्स तो किन्ना किन्ना आया? 5x नूं 10 नाल कीता 50x। ठीक है। मतलब आ ते नोट्स की गिणती सी ना, तो नोटां तो पैसे किन्ने उहदे बन डए आ चीज़ वो आ। सारे पैसे टोटल इन्हां नूं मैं प्लस कर दी तो अमाउंट बनता 4 लाख। मतलब 200x प्लस 150x प्लस 50x कर दी तो मेरा अमाउंट बन जाता सीगा 4 लाख का। दसो हुण इनू सॉल्व कर लो। 150 तो 50 200 200 तो 200 ये आ जाना 400x। 400 ने उधर डिवाइड हो जाना, ये आ गया 1000। x कितना आ गया मेरा? 1000 आ गया। सो किन्ने नोट्स बन जाने? सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 ये किन्ने बन जाने? 2 × 1000। सॉरी अमाउंट चाहिए मैनू, सॉरी नंबर ऑफ नोट्स चाहिए सी। हाउ मैनी नोट्स चाहिए सी। ठीक है। 2 × 1000 ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 वाले 1000 नोट आ। 3 × 1000 50 वाले 3000 नोट आ। ठीक है। 10 वाले 5000 नोट्स आ। ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट आ। तो बेटा इस तरीके दे नाल 15वां क्वेश्चन असी करना आ। तो वो स्टेटमेंट तुसी समझियो। जे तुहानूं नहीं समझ आ रही, इहदे च तुहानूं प्रॉब्लम आ, दैन बेटा मैनूं मैसेज तुसी भेजना उहदे विच बॉक्स दे विच। दैन मैं नैक्सट क्लास दे विच क्वेश्चन तुहानूं एक्सप्लेन कर दूँगी।
ठीक है। थोड़ा बहुत स्टेटमेंट च थोड़ा जा लिटल बिट कह सकते, थोड़ा जा फर्क है, अप्रॉक्सीमेटली होना इसे मैथड दे नाल ही आओ। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 16। The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not wins get a prize of ₹25। कोई कंपीटिशन होया ऐसे कंपीटिशन, जिहड़ा जितदा उन्होंने ₹100 प्राइज़ मिलता, तो जिहड़ा पार्टिसिपेट कर रहा उन्होंने ₹25 प्राइज़ मिलता है। टोटल प्राइज़ मनी, टोटल किन्ने पैसे वंडे उन्होंने 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, कहते किन्ने विनर्स होणगे इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63। अगर कुल 63 जणियां ने पार्टिसिपेट किया वा तो विनर्स किन्ने होणगे। ठीक है, असी लैट कर लेने आ, लैट नंबर ऑफ विनर्स एक्स आ। टोटल किन्ने सीगे पार्टिसिपेंट्स, टोटल पार्टिसिपेंट्स हैगे सीगे, टोटल पीपल हैगे सी 63 पार्टिसिपेंट्स कह लो, या 60 पार्टिसिपेंट्स। टोटल पार्टिसिपेंट्स किन्ने सी, पार्टिसिपेंट्स ही लिख लो भावें, वो है 63। ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हू डज नॉट विन, जेड़े जिते नहीं आ वो किन्ने जने आ, टोटल 63 आ। एक्स जित गए विचों, जेड़े नहीं जिते वो किन्ने आ 63 माइनस एक्स। ठीक है। जेड़ा जितन वाला वा उन्होंने किन्ना मिलता ₹100। ठीक है। किन्ना वा प्राइज़ फॉर विनर, प्राइज़ फॉर विनर किन्ना वा ₹100। तो प्राइज़ फॉर पार्टिसिपेंट, कल्ले पार्टिसिपेंट लिए किन्ना हैगा वा ₹25। इट मीनस अमाउंट फॉर विनर्स, विनर्स लिए किन्ना अमाउंट बनया, एक्स जने सीगे तो ₹100 एक जने नूं मिलिया, ये किन्ना बन जाना ₹100। एक्स मल्टीप्लाई हो जाना। तो अमाउंट फॉर पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स वास्ते किन्ना बनया 60, पार्टिसिपेंट्स है 63 माइनस एक्स, तो किन्ने मिलते एक जने नूं 25, जिन्ने है होणगे 25 नाल मल्टीप्लाई, 25 नाल मल्टीप्लाई कर दिता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100x प्लस आ जो अमाउंट बनूगा वो बन कितना जाता वा 3000। ठीक है। मैं की करना बेटा, इस चीज़ नूं तुसी भावें इत्थे सॉल्व कर लो, भावें तुसीं इत्थे सॉल्व कर लो। ठीक है। हो सकता तुहानूं मैम ने इत्थे सॉल्व करवाई होवे, दैन इट्स ओके। जिहड़ा बच्चा नहीं इत्थे नहीं करता वो इत्थे सॉल्व कर ले। 63 नूं 20, हाँ जी ब्रैकेट के अंदर है ना, 25 ने मल्टीप्लाई हो जाना। 63 नूं मैं 25 नाल मल्टीप्लाई कर दी हाँ, ये आ जाना 1575 माइनस 25x। ठीक है। लाइक टर्म्स ये आ 100x माइनस 25, ये आ जाना 75x, तो ये इधर प्लस का वा, उधर जाके इन्ने हो जाना माइनस का। सो इत्थों तुसी x की वैल्यू कढ़ लैनी है, तो सानू x ही चाहिदा सी, सानू नंबर ऑफ विनर्स ही चाहिए ने। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप तुहानू ये चीज़ क्लीयर हो गई होगी, ये वाली एक्सरसाइज। दैन ये नाल साडी एक्सरसाइज कंप्लीट हुंदी आ। हुण बेटा ये नाल ही मैं तुहानू एक असाइनमेंट भेज रही हाँ। ठीक है। वो तुसी अपने ऑनेस्टली बेटा वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कलैक्ट द असाइनमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अगर तुहानू कोई उहदे विच कोई प्रॉब्लम आ दैन यू कैन आस्क मी। ठीक है। तो उन्होंने बेटा अपनी कंप्लीट जरूर करना वा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।